Hello class, welcome to lecture 2 of class 7 science, and we will be studying chapter 1, which is nutrition in plants. Alright, so by nutrition, what is meant? Nutrition means whatever is required for giving energy and the materials which are required for proper functioning of plants. So nutrition also covers how the food is obtained, that is how food in plants is manufactured or how food in plants is made. So food is made by a process known as photosynthesis in plants, and photosynthesis is a very easy process. So photosynthesis needs certain materials for happening, which is carbon dioxide, water, chlorophyll, and sunlight. So sunlight is quite natural because photosynthesis means to manufacture in the presence of photo, which is light. So photosynthesis means manufacturing in the presence of light. Synthesis means to make. So making food by plants in the presence of sunlight, it is known as photosynthesis. So in your class you should always focus on learning the concept instead of rote memorization, because these are easy things and they will come to you naturally when you study again and again and try to understand the concept rather than rote memorizing it. All right, so what happens in the photosynthesis? So first of all, let us see, uh, let us say that we have a plant. All right, uh, this is the ground and this is a plant. It is having certain roots, and it is like this. So always, for example, it is a tree, it has certain branches, and on the branches there grow the leaves. So there are leaves also. Photosynthesis, it happens in which part of the plant? Mainly it happens in the leaves of the plant. That is why the leaves are called as food factories of a plant. So photosynthesis will happen in this part mostly, which is leaves. So that is why you will find in your books and everywhere else also, leaves are known as food factories of a plant. Now let us see what happens in detail in the leaf of a plant in photosynthesis. So let us say this is a leaf. So what happens in a plant? This is a plant. It has certain roots, and this is a branch. On it grows a leaf. I have made leaf as large, magnified. So here beneath the earth there is some water. जब भी हम जमीन को खोदते हैं तो कुछ डेप्थ बाद पानी निकल आता है, इसीलिए जो कुएं होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है? पानी। तो जमीन के 10 फीट 20 फीट 50 फीट के नीचे पानी होता है। तो प्लांट के अंदर से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जो हमें वाटर चाहिए वो कहाँ से आता है? वो रूट्स के थ्रू जाता है ऊपर, ऐसे जाएगा ऊपर और फिर ये ब्रांच के अंदर जाएगा, फिर लीफ के अंदर जाता है। सो वाटर इट गोज फ्रॉम रूट टू लीफ। तो ये जो सारा रास्ता ट्रेवल करेगा, पहले रूट से जाएगा, फिर स्टेम के अंदर जाएगा, फिर ब्रांच के अंदर जाएगा, फिर लीफ के अंदर जाएगा।
तो इस वाटर का जो रास्ता है वो क्या होता है, लेट अस सी। नंबर 1 रूट, रूट से कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा स्टेम के अंदर, फिर ये जाएगा ब्रांच के अंदर, और फिर ये जाएगा लीफ के अंदर। तो जब भी कोई चीज एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो वो किसी चीज के ऊपर जाती है। जैसे कि गाड़ी है तो वो रोड के ऊपर जाती है, जो ट्रेन्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं तो वो रेल रोड ट्रैक के ऊपर जाती हैं। जब वाटर भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए कोई पाइप होनी चाहिए। तो इसके अंदर, ट्री के अंदर बहुत छोटे छोटे से पाइप्स होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते हैं, जो कि रूट से लेके लीफ तक जाते हैं। रूट, स्टेम, ब्रांच, लीफ सब जगह जाते हैं। छोटे छोटे जो पाइप होते हैं इन्हें बोलते हैं वेसल्स। Vessels are used for transporting water from one place to another. Vessels are used for transporting water and minerals. तो पानी के अंदर, जमीन के अंदर जो पानी है वो रूट्स के थ्रू कैसे जाते हैं, थ्रू वेसल्स, एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स। इन वेसल्स का कुछ नाम होता है। जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं उन वेसल्स का नाम होता है जाइलम, और जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं उनका नाम होता है फ्लोएम। तो अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वी विल टॉक अबाउट जाइलम। अब जब लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, एयर से इसके अंदर जाएगी। ओके, एयर से इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, फिर वाटर के साथ मिक्स होगी और क्या बनेगा, सनलाइट आएगी इसके ऊपर। लीफ के ऊपर क्या आएगी, सनलाइट। दिस इज सन, सन की एनर्जी जा रही है इसके ऊपर, सनलाइट पड़ रही है। एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ से आएगा, क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तब लीफ के अंदर एक चीज मैन्युफैक्चर होती है जिसे हम कहते हैं प्लांट का खाना। दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और शुगर, और ये प्लांट का क्या है, फूड है। जैसे कि आप जो भी खाना खाते हो उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। तो उसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चर हो जाता है, विच इज एसेंशियल फॉर लिविंग। और बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है, ऑक्सीजन। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन लीफ से बाहर आती है। ओके, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस में जो बनता है उसको क्या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, क्या शुगर बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर अगर कोई आपको लिख कर दे दे C6H11O6 तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ अगर आपको इक्वेशन याद नहीं है। सो यू हैव टू रिमेंबर द इक्वेशन, you have to read it again and again and you have to understand this equation. So next we will move on to the highlights of photosynthesis. photosynthesis में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। So you should see this video again and again so that you don't have to rote memorize the thing, so that you can recall each and every important point on your own विदाउट रोट मेमोराइजेशन। क्योंकि जो भी आपके ओलंपियाड्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वो रोट मेमोराइजेशन को एनकरेज नहीं करते हैं कभी भी। सो हाइलाइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस वी विल सी। ये चीज़ें ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। नंबर 1, क्या फोटोसिंथेसिस जो है वो नाइट में हो सकता है? कैन इट हैपन इन नाइट? नो। क्यों? क्योंकि ये लाइट में होता है। अब ये नाइट में नहीं हो सकता, नो इट कैन नॉट। बट क्या जो रेस्पिरेशन है प्लांट के अंदर, जो एयर इधर से उधर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गई, ऑक्सीजन बाहर आई, क्या ये इस तरह की कोई प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन, ये रात में हो सकती है? यस, रेस्पिरेशन तो रात में भी होती है।
रेस्पिरेशन इन नाइट, इस पर क्रॉस आएगा या टिक आएगा, दैट यू हैव टू सी। सो इट इज अ टिक। रेस्पिरेशन का मतलब है कोई चीज ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड में से कुछ भी अंदर जा रहा है और एक चीज बाहर आ रही है। तो डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर आएगी, और नाइट टाइम में क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी प्लांट के और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अगर जो दिन में हो रहा है एग्जैक्टली अगर उसी का ऑपोजिट रात में हो रहा है, तो जितना ऑक्सीजन प्लांट देते हैं उतना ही वह रात को ले लेंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो इसका आंसर ये है कि डे टाइम में दे रिलीज मोर ऑक्सीजन, जितना वो रात को कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वो दिन में दे देते हैं। सो इन डे टाइम मोर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो कुल मिला के क्या होता है, ऑक्सीजन ओवरऑल हमेशा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, उसका कभी भी लैक नहीं होता है ड्यू टू रेस्पिरेशन ऑफ अ प्लांट। सो ऑल्सो देन देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि जो फोटोसिंथेसिस है क्या वो खाली लीफ के अंदर होता है? थर्ड इज फोटोसिंथेसिस कैन इट हैपन ओनली इन लीफ? देन आंसर विल बी नो, इन लीफ ओनली। तो आंसर इज नो। कहाँ कहाँ पर हो सकता है? जहां जहां पर ग्रीन पार्ट है प्लांट का वहां पर होता है। लीफ के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, बट जो अदर पार्ट है विच आर ग्रीन, फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन देम आल्सो, इट हैपेंस इन ऑल ग्रीन पार्ट्स। तो ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस किस टाइम पे होता है, रेस्पिरेशन नाइट में होता है नहीं होता है, और फोटोसिंथेसिस क्या खाली लीफ के अंदर होता है या नहीं होता। And then there is one more thing. So ultimately if you see, जो प्लांट है उसका खाना कहाँ से बनता है? फोटोसिंथेसिस से, और फोटोसिंथेसिस किससे हो रहा है? लाइट से। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लाइट से प्लांट सरवाइव कर रहे हैं, और जो ह्यूमंस हैं वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? तो लाइट से क्या हुआ, लाइट से प्लांट चल रहे हैं। लाइट गिरी अर्थ पर तो प्लांट्स ने खाना बनाया अपना और प्लांट्स सरवाइव। अब प्लांट्स को क्या खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं, तो उससे वो सरवाइव कर रहे हैं। तो या तो एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट पे सरवाइव करते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एनिमल्स पे सरवाइव करते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी चीजें सरवाइव कर रही हैं, प्लांट या एनिमल्स, वो किससे सरवाइव कर रही हैं? लाइट से। लाइट का मतलब सन से सरवाइव कर रही हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से ही सारी एनर्जी आ रही है, क्योंकि उसी से सब लोग सरवाइव कर रहे हैं। सो वी विल से सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो यू मे बी आस्क्ड, कोई आपसे पूछ सकता है, आपकी फैमिली में पूछ सकता है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इन सम एग्जाम इट मे बी आस्क्ड व्हाई इज द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन। सो यू शुड नो द रीजन कि लाइट से प्लांट सर्वाइव करते हैं, प्लांट से एनिमल, और एनिमल के ऊपर ही दूसरे एनिमल भी सर्वाइव करते हैं, या डायरेक्टली वो प्लांट पे सर्वाइव कर रहे हैं। सो ओवरऑल सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। So there is one more thing. In photosynthesis, sometimes you may have seen plants. For example, this is a tree. So you must have seen some tree of cherry blossom tree. तो उसमें क्या होता है, पिंक पिंक होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं ना, लीफ होती हैं पिंक होती हैं। एंड समटाइम्स देयर आर प्लांट्स विच हैव वॉयलेट कलर लीफ, बैंगनी से रंग की लीफ होती हैं, वॉयलेट लीफ भी होती हैं, ब्लू भी होती हैं। तो जो अलग अलग पत्तियां होती हैं अलग अलग कलर की हो सकती हैं प्लांट में।
तो हमने तो ये पढ़ा है कि जो ग्रीन कलर के जो प्लांट होते हैं, ग्रीन कलर की लीफ होती है, उसमें ही क्लोरोफिल है। तो क्या जो प्लांट जिनकी वॉयलेट लीफ है और ब्लू लीफ है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, होगा। होता क्या है कि किसी भी प्लांट के अंदर जब कई तरह के पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स माने कलर, तो उसके अंदर क्या होता है, कई बार ग्रीन पिगमेंट भी होता है, ब्लू भी होता है, और एक पिगमेंट का जो कलर है वो ज्यादा होता है, ब्लू इज मोर। तो होगा क्या कि जिस कलर का पिगमेंट ज्यादा होगा उस कलर की लीफ बन जाती है, बट उसके अंदर ग्रीन भी है। ग्रीन का मतलब क्या होगा? क्लोरोफिल। तो सभी प्लांट्स में थोड़ा या बहुत क्लोरोफिल तो होता ही है। तो क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस भी होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर, जो लीफ का जो कलर होता है इट डिपेंड्स ऑन दी काइंड ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट। उसके अंदर 2 कलर भी हो सकते हैं, 3 कलर भी हो सकते हैं, बट जो कलर सबसे स्ट्रांग होगा वो आपकी आंख को दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इट सिंपली मीन्स द कलर इज स्ट्रॉन्गर। जैसे कि आपके चेहरे पे अगर मैं ब्लैक, ब्लू, वाइट सारे कलर लगा दूं, बट ब्लैक कलर सबसे स्ट्रांग है, तो आपके चेहरे पर ब्लैक ही दिखेगा, डिस्पाइट पेंटिंग इट विथ मैनी अदर कलर्स। लाइक इन होली, आपका चेहरा एक ही कलर का दिखता है फाइनली, जो सबसे डार्क होता है, बट उससे पहले कई सारे कलर आपके चेहरे पर आ जाते हैं। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट वी विल बी प्रोसीड ऑन टू लर्निंग अबाउट सेल्स। कोई भी जो चीज़ है, प्लांट हो या एनिमल्स हो, वो किससे मिलकर बने हैं? सभी जो लोग हैं, सभी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे आर मेड फ्रॉम सेल्स। ओके, सो सेल्स, प्लांट और एनिमल्स दोनों इनसे बनते हैं। अब सेल का मीनिंग क्या है? सेल एक वो सबसे छोटी यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली वो सारे काम करती है जो हम कर सकते हैं, बेसिक फंक्शन। जैसे कि रेस्पिरेशन करते हैं हम, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। सेल के अंदर भी क्या होता है, ये एक सेल है, सेल का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस और ये कुछ कुछ साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन का अंदर बाहर जाना, ये सब होता है। CO2 बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। हम भी रेस्पिरेशन करते हैं, सेल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। हम एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि सुबह में मॉर्निंग में यूरिन निकालते हैं, स्टूल निकालते हैं, इनके अंदर से भी जो एक्सक्रीटा होता है यानी कि गंदगी होती है वो सब बाहर आती है। हमें खाने की ज़रूरत होती है, इन्हें भी खाने की ज़रूरत होती है, इनके अंदर भी खाना पहुंचता है बॉडी के अंदर, फूड। तो इनके जो बेसिक फंक्शन है वो सारे सेम है। हम रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस का मतलब है हम अपने जैसे ही लोग पैदा करते हैं। अगर ह्यूमन है तो वो ह्यूमन बच्चे पैदा करते हैं। उसी तरीके से जो सेल्स होते हैं, सेल्स भी रेप्लिकेट करते हैं। एक सेल से 2 सेल भी बन जाते हैं, यानी कि इसने अपनी ऑफस्प्रिंग दी है, तो सेल्स डुप्लीकेट। तो सेल बॉडी का वो सबसे छोटा पार्ट है जो वो सारे बेसिक फंक्शंस करता है जो ह्यूमंस कर सकते हैं या एनिमल्स कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब है जो सारे वो काम कर सकती है जो बेसिक काम हम करते हैं। ऑलराइट, एंड next we will see the types of organisms, or we will see the types of cells there are. So basically there are 2 types of cells. cells भी क्या होते हैं, कई बार जो organisms हैं, so organism जो होते हैं animals and plants, they are made up of cells. अब कई बार क्या होता है, सिंगल सेल के बने होते हैं वो, और कई बार होता है मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं। जैसे हमारे अंदर हजारों करोड़ों सेल्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स, बट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशिया, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक ही सेल होता है, मल्टीपल सेल।
अमीबा, पैरामीशिया। एंड मल्टीपल सेल्स वाले क्या हो सकते हैं, जैसे कि मंकी और ह्यूमन, कुछ भी हो सकता है। बाकी जो बड़े बड़े जानवर आपको दिखते हैं दे आर मल्टीपल सेल्ड, उनके अंदर हजारों करोड़ों सेल्स होते हैं। हाउ डू यू नो? क्योंकि एक सेल तो आंख से दिख नहीं सकता, यानी जो भी चीज आंख से दिख रही है, जो भी लिविंग चीज दिख रही है, उसके अंदर मल्टीपल सेल्स हैं। दे आर मल्टीपल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। So this will be the end of class for lecture 2, and we will be learning some new and fascinating stuff in next class. So please see the lectures before this one, which I have recorded for you, and listen carefully always so that you can perform very well in your entrance exams. And I wish you all the best, and all of you please have a good day. Thank you so much.